آغاز اہم خبر سے، نواز شریف کی واپسی پر ملک کا سیاسی اور معاشی نقشہ بدل جائے گا۔ چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ کے کونسل جنرل کے اجلاس میں خطاب، کہا IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے انفرا پارٹی انتخابات، شہباز شریف بلا مقابلہ صدر اور مریم نواز سینئر نائب صدر منتخب۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں مریم نواز، حمزہ شہباز، احسن اقبال، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، انجینئر امیر مقام اور شاہ غلام قادر بھی شریک ہوئے۔ شاہد خاقہ نواسی بیرون ملک ہونے کے باعث شرکت نہ کر سکے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے قرارداد پیش کی۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں پارٹی رہنماؤں سے متعلق باتیں کرنے والوں کو کھری کھری سنا دی۔ جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت، ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالکل نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا، جو کہتا تھا بہت مقبول ہوں، آج ملاقاتوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ احسن اقبال کہنے لگے پارٹی کو مضبوط بنائیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا، سیکرٹری اطلاعات منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اجلاس میں نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا تاحیات قائد بنانے کی ایک بار پھر توثیق کی گئی۔ صوبائی صدور اور سیکرٹری جنرلز کا اعلان پارٹی صدر کریں گے۔ شہباز شریف کو جنرل کونسل نے پارٹی کے فیصلوں کا مینڈیٹ دے دیا۔ پارٹی کے دیگر عہدیداروں کا فیصلہ بھی صدر مسلم لیگ نون کریں گے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور چلے گئے۔ مریم نواز کا نون لیگ کے کونسل جنرل اجلاس سے خطاب، کہا تبدیلیاں لانے والے بھی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے۔ مریم نواز کی جانب سے تقریب سے خطاب میں ایسا کہا گیا۔ شرم کی بات ہے، دوسرے ملکوں کے سینیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ملک کے لیے ایک بیان دے دو، میرے لیے ایک بیان دے دو، کیونکہ جب تم بیان دیتے ہو تو پاکستان میں تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ کبھی ان ماؤں کا اس کو خیال نہیں آیا جن ماؤں کے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں اس وقت رول رہے ہیں۔ کیا پوچھا جا کے کہ ان کے پاس کوئی مدد کرنے کے لیے ہے؟ ان کا کوئی حال پوچھنے کے لیے ہے؟ سب کو وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک واقعات ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو، کہا کہ جا کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا شہداء کسی ادارے کے نہیں ہوتے؟ شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں۔ مشکل ترین، بدترین مسائل کے باوجود، انتقام کے باوجود، مظالم کے باوجود، انتقام میں کوئی شخص اندھا ہو گیا تھا، اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کبھی نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہ جس کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ 6% ترقی پر ملک ڈوبتا ہے تو اسحاق ڈار معیشت دفن کر چکے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کا مریم نواز کا بیان پر جواب، کہا مریم جھوٹ ایسے بولتی ہے کہ جھوٹ بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔ مریم جھوٹ ایسے بولتی ہے کہ جھوٹ بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔ فاروق حبیب کی جانب سے رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا، مزید کہا کہ 6% ترقی پر ملک ڈوبتا ہے تو اسحاق ڈار معیشت دفن کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ لڑائی کی بجائے مذاکرات کسی بھی مسئلے کا بہتر حل ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے۔ وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں خطاب کر رہے تھے۔ In our view, the main driver for international relations should be cooperation, not confrontation. There is everything to be gained from economic interdependence and peaceful coexistence. We hope that there will be a move towards peaceful resolution of the ongoing conflict through dialogue and diplomacy. Pakistan is committed to having cooperative and good neighborly relations with India on the basis of mutual respect and sovereign equality. تاحیات نااہلی کی تلوار نیام میں واپس، نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کا بل سینٹ کے منظور۔ ترمیم کے مطابق نااہلی کی سزا ختم ہونے پر متعلقہ شخص اسمبلی رکن بننے کا اہل ہوگا۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا صدارتی اختیار ختم کرنے کا بل بھی سینٹ سے منظور ہو چکا۔ Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands fast. سینٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ سینٹ اجلاس میں وزیر مملکت شہادت عوان نے الیکشن ایکٹ
2017 में तरमीम का बिल पेश किया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की शिक 1F के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। दोनों प्रोविजंस में ये तय कर दिया गया था कि इट वुड बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जहां पे आइन में लिखा है आइन प्रिवेल करेगा, जहां पे खामोशी है या जहां पे कोई अनोमली है वो इस कानून साजी के जरिए दुरुस्त करें, इससे ज्यादा बात नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये कुल्ली इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे देना और जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस रही है उसको सामने रखते हुए ये आइन के साथ ज्यादती होगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने सेनेट इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रिजवान गलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। में कराची के इलेक्शन पर जमात इस्लामी का यौम स्याह कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में जमात इस्लामी सड़कों पर। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 जून को जमहूरियत का गला घोंचा गया। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वाली जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत पर अक़लियत जीत गई। सूबाई वज़ीर सईद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हाफिज नईम को ज्यादा वोट नहीं पड़े तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं, तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गानी ने कहा कि हाफिज नईम को ज्यादा वोट नहीं पड़े तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं। तुम होते कौन हो धमकी देने वाले? सूबाई वजीर शर्जील मेमन MQM पर बरस पड़े। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कराची सिंध है और सिंध ही रहेगा। मानता हूं कराची में स्ट्रीट क्राइम है। इससे पहले सेंसस हुआ था, उसमें भी सिंध के साथ ज्यादती हुई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर उस वक्त आपके इमरान खान नियाजी प्राइम मिनिस्टर थे। जो फेडरल गवर्नमेंट में मीटिंग हुई उसमें डिसेंटिंग नोट दिया कि हम इस सेंसस को नहीं मानते। आपके MQM के वजीर जो उस वक्त फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे उन्होंने साइन कर दिया कि हम सेंसस को मानते हैं। बैठ जाओ, तकरीर पे बात करना अपनी, बैठ जाओ। हाँ तो मैं बता रहा हूं, ये जो दोस्त ने बात की कि कराची में लोग अफगानिस्तान से आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाते हैं, पंजाब से, सिंध से आ जाते हैं। और सिंध से आ जाते हैं, क्या है? कराची सिंध है, कराची सिंध है। किसी के बाप में मत डालने हमें आने से रोके। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। जिसने ये ख्वाब देखा था, जिसने कोशिश की थी, वो लंदन में लॉक हो गया। यूनान कश्ती हादसे में कोटली के एक ही खानदान के 12 अफराद लापता। लापता अफराद की उम्र 18 से 35 साल तक हैं। सिविल सोसाइटी और तलबा का एजेंट माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। यूनान कश्ती हादसे में कोटली के एक ही खानदान के 12 अफराद लापता। दूसरी जानिब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में अगवा के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आजम खान की गुमशुदगी से मुतालिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क में महंगाई का तूफान थम ना सका। रवां हफ्ते दूध, आटा, चीनी, आलू, चावल समेत 19 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर हफ्तावार महंगाई 34.96% रही। आम इंतखाबात ना भी होते तब भी ऐसा बजट पेश करते। वजीर खजाना इसहाक डार की खजाना को ब्रीफिंग, कहा चीन को अदा किया गया $1 अरब कर्ज पीर तक वापस मिल जाएगा। रेकॉर्ड से 6000 अरब डॉलर हासिल किए जा सकते हैं। समुद्री तूफान बायपरजॉय हाई पर नहीं रहा। कराची समेत पाकिस्तान के किसी भी साहिल पर टकराने का खतरा टल चुका है। आज रात तक तूफान की शिद्दत मज़ीद कम हो जाएगी। तूफान की शिद्दत आज रात तक मज़ीद कम हो जाएगी। समुद्री तूफान बायपरजॉय हाई पर नहीं रहा। बहिर अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बायपरजॉय के खतरा टल गए। तूफान गुजरते गुजरते हवाओं के झक्कड़ और बारिशें छोड़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान भारतीय गुजरात में रन ऑफ कच्छ के मकाम पर है और शुमाल मशरिक की सिमत में हरकत कर रहा है। तूफान के ज़ेरे असर कराची, बदीन, सजावल, ठट्टा, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में भी हवाओं के तेज झक्कड़ के साथ बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 17 जून तक खुले समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तूफान टलने पर पाक आर्मी, नेवी, रेंजर्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर इदारों की जानिब से
हुकूमत की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शरीक पाकिस्तानी स्क्वाड के एहसास में इस्तकबालिया दिया। खिलाड़ियों को बर्लिन में तारीखी मकामात का दौरा भी कराया गया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने तारीखी दीवार बर्लिन के साथ सेल्फियां भी बनवाए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी ने उम्मीद जाहिर की है कि टीम इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शरीक पाकिस्तानी स्क्वाड के एजाज में शानदार इस्तकबालिया दिया। अपने खैर मकदमी कलमात में पाकिस्तानी सफीर ने कहा, मैं टीम इंतजामिया रौनक लाखानी, यास्मीन हैदर और तमाम कोचेस और ऑफिशियल्स को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत हमारे खिलाड़ी मुनासिब तरबियत के साथ इस मुकाम तक पहुंचने के काबिल हुए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और पाकिस्तानी वफ्द की क़ायद रौनक लाखानी ने पाकिस्तानी सफीर और सिफारत खाने की जानिब से भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। रौनक लाखानी ने उम्मीद जाहिर की कि टीम इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बर्लिन में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा कराया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दीवार बर्लिन, जर्मन पार्लियामेंट, फ्यूचर म्यूजियम, मरकजी रेलवे स्टेशन, सेंट्रल पार्क और स्पेशल बच्चों के स्कूल ले जाया गया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने तारीखी दीवार बर्लिन के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाईं। फ्यूचर म्यूजियम के दौरे पर रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी को देखकर खिलाड़ी बहुत मुतासिर हुए। खिलाड़ियों के लिए बर्लिन के सबसे बड़े थिएटर में आराइस ग्रैंड शो का एहतमाम भी किया गया। पाकिस्तान इवेंट में 11 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहा है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।